A class will be over. If you like, we'll wait for you. So we have started three organs of the government. These are the three chapters from your book. Executive, we had discussed important topics from this executive part. Judiciary is an independent body. Actually, these two are closely interrelated. इनकी बहुत सारी activities, functions हैं. Where they are independent on each other, they keep check and balance on each other. Actually, check and balance. So तीनों का they have separate powers, but still these two are closely connected. We will try to understand that how. ये एक सेपरेट बॉडी है जिसके अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट्स आते हैं, हमारा जस्टिस आता है. विल स्टडी दैट सेपरेटली, बट एग्जीक्यूटिव का सब पार्ट्स वी हैव सीन. एंड इन टॉकिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, दिस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज द सोल पावर व्हिच मेक्स लॉज फॉर अस, एक्चुअली व्हिच डिबेट्स एंड मेक्स various laws for our country, for our people, and accordingly they are implemented by executive. So let's see what is the close relation between these two. So when we are talking about legislature, इसके अंदर एक बहुत important thing आ जाती है. It means we are talking about parliament. जब भी legislate और we are talking about laws कहाँ बनते हैं, तो laws कहाँ बनते हैं हमारी country के? एक ही organ है, एक ही institution है, parliament. तो parliament basically we talk under legislature. ठीक है? It's just a play of words. Legislature and parliament one and the same thing, although इनके functions law बनाने के अलावा भी और सारे functions हैं which we will study. But the most important function जो parliament का है legislature में, वो क्या है? Making of the laws. And for making of the laws, which structure we are following in India? We are having which form of legislature? Bicameral. Bicameral means we are having two houses. Parliament में हमारा कितने house है? Two house है. लोकसभा, ये तो सबको पता है. But important thing is this is called, इस structure को हम बोलते हैं bicameral, where we are having two houses to discuss various laws. There are various debate for various schemes, development policies which are adopted in our country. ऐसे adopt नहीं हो जाती है. पहले उसमें क्या होता है? Debate होती है हमारे दोनों houses में. Later on they are passed and they are signed by the India. ऐसे की important thing, parliament का कौन होता है? कौन होता है? President. Important बात है. ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं एक कोई भी बिल आता है, डिबेट होता है लोकसभा में, later it is passed to राज्यसभा and finally it is signed by the president, which becomes a law and which is executed or implemented in our society, in our government, to the various parts of our country by the executive. And now it is a responsible judiciary. अगर उसके implementation में it is going against the basic structure of the constitution, जो norms और provisions हमारे constitution में लिखे हैं उसके against कोई bill बन रहा है, उसके implementation में कुछ ऐसे false characters हैं, तो it is checked and seen by the judiciary. That is why we say judiciary is also the protector of our constitution. कि हमारी country में जो policies implement हो रही हैं, schemes चल रही हैं, are they according to the constitution of our country? Are they beneficial for each and every person of our society? कुछ अगर गलत है तो it is checked by the judiciary. फिलहाल it is not the part of our this discussion. अब क्या होता है, मैं इनको इतना closely integrate है, इतना closely linked इसलिए कह रहा हूँ. कुछ members हैं हमारे, which are the members of executive. इससे पहले मैं बुक का बताऊँ, पहले ये क्लियर कर दूँ ना आपका. मेंबर के इसके एग्जीक्यूटिव के बताए थे ना कौन कौन होते हैं एग्जीक्यूटिव्स, कौन कौन होते हैं चंदन? सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. These four are the important part of executive which are responsible for implementing various laws which are made in the parliament, or it is a sole body to legislate our laws. एक यही responsibility है legislature की, और कोई laws नहीं बना सकता. laws इनसे बनते हैं, implement ये लोग करते हैं. but if you see ये लोग आ कहाँ से रहे? president, vice president, PM और council of ministers. are they directly elected as a executive? इसको हम जब वोट देते हैं डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव बनाते हैं. यस कह रही है, कहने राखी. यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन होते हैं हमारे लोकसभा के, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल के कितने मेंबर आते हैं? 543. ठीक है, इन्हीं मेंबर्स में क्या होता है, जिसकी मेजॉरिटी, जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है वो क्या बना लेती है? गवर्नमेंट. मेजॉरिटी मींस 543 में 272 के जिसका सीट्स है, दैट पार्टी विल मेक द गवर्नमेंट. जैसे भी बीजेपी की है, उनकी 300 के अराउंड थी, तो उनकी अपनी मेजॉरिटी है. ठीक है, सरप्लस है. तो उसमें से क्या होता है, जो पार्टी है 272 मेंबर, सपोज ये बीजेपी हमारी, तो इसमें से हम देखेंगे हु वाज द लीडर ऑफ दिस पार्टी. लीडर कौन थे? नरेंद्र मोदी. उनको हमने क्या बना दिया? पीएम बना दिया.
पीएम बेसिकली कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। नाम के लिए मैंने बोला था ही इज द नॉमिनल हेड। चीजें ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि जो पार्टी मेजोरिटी में होगी उसका जो लीडर होगा उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एज अ पीएम। एक से कह सकते हैं साइनिंग अथॉरिटी है, अदरवाइज बनना उसी को होता है जो लीडर है, बट रिस्पांसिबिलिटी इसकी प्रेसिडेंट विल अपॉइंट पीएम ऑफ द पार्टी व्हिच इज हैविंग द मेजॉरिटी एट द सेंटर। लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूं, स्टेट असेंबली की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नाउ दो लोग आ गए, प्रेसिडेंट आ गया, ये तो पहले से होता है दोनों, एंड पीएम को अपॉइंट कर दिया। नाउ विद द डिस्कशन और विद द ओपिनियन ऑफ द पीएम, प्रेसिडेंट विल आल्सो अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब पीएम बताएगा कि ओके जो मेरी टीम है 272 की, इनमें से विच आर द मिनिस्टर्स जिनको मैं क्या बना रहा हूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या बना रहा हूं, मेंबर बना रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे ये डिस्कस करना चाह रहा हूं, सी एग्जीक्यूटिव में जो मेंबर्स हैं ये लोग, दे आर आल्सो द इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। वो यही से तो निकल गए, दे आर रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम उनको यहां से रिप्रेजेंट नहीं करते लोकसभा में, अगर वो इलेक्ट नहीं होते, सो दे कैन नॉट बिकम दिस प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसका ये रिलेशन है, बस ये ध्यान रखना है हमको। तो तभी ये रिस्पांसिबल भी होते हैं लोगों को, बिकॉज़ दे हैव टू मेंटेन द मेजॉरिटी है। अब यहां पे 272 है, ठीक है, इनमें से ही कुछ लोग पीएम बन गए एंड सम हैव बिकम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब दे इफ दे डोंट वर्क हियर प्रॉपर्ली, या एक मोनोपोली की तरह काम करते हैं, या पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो यहां से इनका सपोर्ट हट जाएगा। और यहां पे क्या बोला हुआ है हमने, लोकसभा में क्या रेशियो होना चाहिए, किसी भी पार्टी जो गवर्निंग पार्टी है उसके पास कितनी सीट होनी चाहिए, 272। अब 272 में से कुछ लोग तो ये बन गए, पर जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं उनकी पार्टी के, दे आर एमपीज, दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अगर अपना सपोर्ट हटा लेते हैं इनसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज तो इनको साथ इंक्लूड होकर के लॉज को प्रॉपर बनाए, प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करें, इनका भी ओपिनियन मानना पड़ता है, इनकी बातें सुननी पड़ती है। तो एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज अंडर चेक एंड बैलेंस ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब लोकसभा में जो हमारी सीट्स है, अगर ये लोग यहाँ पे अपना नो उसको क्या बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक मोशन चलाया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो यहाँ के जितने एमपीज हैं ये अपना सपोर्ट इन लोग से हटा लेंगे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की मेजॉरिटी मान लीजिए कितनी बचेगी, 230 बची। 70 30 40 लोग जो थे उन्होंने पार्टी को क्या कर दिया, हटा दिया, अपना सपोर्ट हटा दिया, तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। सो इट इज इंपॉर्टेंट इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, ताकि जो पार्टी मेजॉरिटी में वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाए। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये पर्टिकुलरली सेपरेट फंक्शन है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पर ये इन दोनों का है, क्योंकि जो हम एग्जीक्यूटिव के अंदर मेंबर्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ऑर्गन्स है इसके, वो कहीं ना कहीं इसी से लेते हैं, हमारे लेजिस्लेचर से। Now I am going to read it from your book. So the very first एक introduction part ले लेते हैं, which you have studied in your previous classes. You have already studied the importance of elections and the method of elections adopted in India. So in the last chapter we have seen, इससे I think कौन सा chapter था, इससे पहले वाला एग्जीक्यूटिव था, ठीक है। तो हमने इलेक्शन सिस्टम के बारे में पता है, why elections is so important in India. Legislatures are elected by the people and work on behalf of the people. तो जो लेजिस्लेटिव में जो लोग आएंगे, हमारे लोकसभा में लोग बैठेंगे या राज्यसभा में, they are somehow elected by the people. ये बस डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनडायरेक्टली। जो हम यहाँ पर राज्यसभा में एक्चुअली कौन से लोग होते हैं, चैप्टर तो बात की बात है, राज्यसभा में कौन से लोग होते हैं, राज्यसभा को और हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट में अब हम उत्तराखंड में हम वोट देंगे, अपनी स्टेट असेंबली बनाएंगे, तो जो हमारे एमएलएज होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो हमारे यहाँ पे बैठते हैं, वही लोग इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। एक फिक्स सीट होती है कि उत्तराखंड से 10 यहाँ पर क्या 10 एमपीज हैं राज्यसभा में, तो हमें 10 एमपीज कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली से। उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली में हम इलेक्शन कराएंगे, वो इलेक्शन कौन सा होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। राज्यसभा के मेंबर्स के लिए भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉलो करते हैं। फिर यहाँ से हम लोग 10 मेंबर्स अपने उत्तराखंड से सिलेक्ट करेंगे एंड दे विल बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पे इसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स में जो हमारे एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, उन्हीं को हम मेंबर ऑफ ये बनाते हैं राज्यसभा, ठीक है। तो ऐसे हर स्टेट से होगा। So in this chapter you will study how elected legislature functions and help in maintaining democratic government. You will also learn about the composition and functions of parliament and state legislature in India and their importance in democratic government. After reading this chapter you would know the importance of legislature, हमें पता चलेगा legislature इतना important क्यों है, the functions and powers of parliament, हमें parliament के functions और powers पढ़ने हैं इसमें, law making procedure क्या होता है, किस तरीके से laws बनते हैं,
Then how the parliament controls the executive, अभी मैंने एक एग्जांपल छोटा सा दिया, but there are more things, किस तरीके से ये लोकसभा पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल है। इसमें प्रेसिडेंट आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ रहे हैं। ये लोग बहुत पावरफुल है, पर इनको कंट्रोल करना जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन बनाया है कि पार्लियामेंट किस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखता है एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर। वी विल स्टडी दैट आल्सो एंड हाउ द पार्लियामेंट रेगुलेट्स इटसेल्फ। So the very first question which is there in your book, that is why do we need a parliament? सबसे important। तो अगर मैं parliament word use कर रहा हूँ तो मतलब मैं पूछता हूँ why do we need a legislature? सबसे important जो हमारे laws बनाता है, ठीक है। सबसे important thing जो हमारे laws बना रहे हैं वो कौन से members हैं? Those we have selected our representative through voting। हमने वोट दिया है, इसीलिए हमारे members elect हुए हैं जो हमारे लिए laws बनाएंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं, ये तो आप सबने जो क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इसमें देखते हैं क्या कंटेंट दिया हुआ है आपका। लेजिस्लेचर इज नॉट मेरली अ लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जगह यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, लेजिस्लेचर। तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे बोला लेजिस्लेचर इज नॉट मेरली अ लॉ मेकिंग बॉडी। बस हम लेजिस्लेचर को ये नहीं सोचें कि बस ये लॉ बनाता है, लॉ मेकिंग बॉडी है, बाकी सब कोई फंक्शन नहीं, इसकी और भी फंक्शंस हैं, ठीक है। लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ, ये लॉ मेकिंग इसका एक फंक्शन है। इट इज द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, देखिए क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक है कंट्री, हमारी कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री। इट मींस हियर सिटीजंस हैव अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। हमारी डिसीजन मेकिंग में हमारे ओपिनियन को माना जाता है, और तो इनडायरेक्टली हम वोट करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, हमारे अकॉर्डिंग सब यहाँ पे डिबेट्स होती हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लॉ मेकिंग सॉरी इट इज द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या चलता है, हमने आप न्यूज़ चैनल में देखा है ना, लोकसभा के अंदर दिखा रहे होते हैं, लोग बैठे हैं, रूलिंग पार्टी बैठी है, अपोजिशन बैठे हैं, यहाँ पे डिबेट चलती है, डिस्कशन चलते हैं, चिल्लाते हुए एक दूसरे के ऊपर। तो बस अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो बस ये एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, यहाँ पर हम बहुत सारी एक्टिविटीज देखते हैं जो एक इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। अगर यहाँ पे कोई भी लॉ इजीली पास हो जाए तो इसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे हर एक सोसाइटी के पार्ट की, हमारी कंट्री का हर एक मेंबर का रिप्रेजेंटेशन है कहीं ना कहीं, प्रोपोर्शन इस टाइप से हमारा इलेक्शन में होता है कि हर एक इंसान हर एक पार्ट से हमारी कंट्री के यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को। तो जब कोई भी बिल होता है, कोई भी लॉ होता है, तो हर एक पर्सन यहाँ पर उठ के बोलता है कि उसकी सोसाइटी में इसमें क्या डिमेरिट्स है या इस लॉ से क्या मेरिट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर लॉ ही नहीं बनते कि हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को एक टाइप से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन भी होते हैं, प्रोटेस्ट भी होते हैं, हल्ला भी होता है, शोर भी होता है, कॉपरेशन भी देखेंगे, ठीक है, सब कुछ होता है। तो इट इज नॉट जस्ट द लॉ मेकिंग बॉडी, ये टाइप से ट्रू इमेज है हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी की। अगर ये ना हो तो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं हो सकती, ठीक है। एग्जांपल दिया उन्होंने, इट इज पैक्ड विद एक्शन। इसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा होता है, ठीक है। जब भी आप न्यूज़ में देखोगे तो न्यूज़ में भी एक्शन हो रहा होता है ना हमेशा। लोग कोई लोकसभा में किसी पार्टी का मेंबर कोई बोल रहा है तो दूसरे लोग उसे अपोज करते हैं, हल्ला करते हैं, कितना, ठीक है। एक्शन हो रहे होते हैं, वॉकआउट्स होते हैं, बहुत सारे मीटिंग्स छोड़ देते हैं टू शो देयर प्रोटेस्ट, ठीक है। प्रोटेस्ट होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, एनएमिटी, कंसर्न्स होते हैं, कोऑपरेशन होते हैं। तो हर टाइप की एक्टिविटी यू विल सी इन द पार्लियामेंट। ऑल दीज सर्व वेरी वाइटल पर्पस, और ये बहुत जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी में इस टाइप की पार्लियामेंट हो। Indeed, a genuine democracy is, अगर हम किसी भी प्रॉपर पॉजिटिव ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी की बात करें तो वो मीनिंगलेस होगी। इनकन्वेंसिबल मींस इट इज मीनिंगलेस विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स किसी पार्लियामेंट में नहीं होंगे जिनको हमने इलेक्ट किया है, ठीक है, तो हमारी पार्लियामेंट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। मीनिंग, अगर हमारी पार्लियामेंट हम कह रहे हैं मीनिंगफुल है, हमारी डेमोक्रेसी का कुछ मीनिंग है, इट इज जस्ट बिकॉज पार्लियामेंट में किसके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे जिसको हमने डायरेक्टली इलेक्ट किया है, हमने वोट दिया है, हमने इलेक्ट किया है। अगर इनको हम इलेक्ट नहीं करते, गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने मन से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट कर लेती, तो यहाँ पर इतनी प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होती। वो अपने तरीके से काम करते हैं, अपने बेनिफिट्स को पहले देखते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा मेंबर है, जो हमारे एरिया से गया है, उसको पता है मुझे उत्तराखंड के इस पार्ट के लिए बोलना है, यहाँ मुझे डेवलपमेंट आना है, मुझे यहाँ पावर फैसिलिटीज आनी है, मुझे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ये जो स्कीम बन रही है ये एप्लीकेबल नहीं होगी उत्तराखंड में, तो वो यहाँ पर बोलेगा हर चीज, लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जाएंगे। तो ये क्या है, ट्रू रिप्रेजेंटेशन दिखाता है हमारे डेमोक्रेसी का। और बिना रिप्रेजेंटेटिव, अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर नहीं होते तो हम प्रॉपर डेमोक्रेसी को फंक्शन नहीं कर सकते हैं। ये लिखा है
All these serve a very vital purpose. Indeed, a genuine democracy inconceivable without a representative, efficient and effective legislature. अगर हमें efficient और effective legislature चाहिए, वहाँ पे बहुत important रोल है डेमोक्रेसी का। ट्रू डेमोक्रेसी कहाँ पे होगी? जहाँ पर हमारे representatives जिन्हें हमने खुद इलेक्ट किया है वो वहाँ पे वर्क कर रहे होंगे। The legislature also helps people in holding the representatives accountable. अब ये legislative क्या है? अब ये जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं दे आर आल्सो अकाउंटेबल। अब लोगों का यहाँ पे कुछ भी डिस्कशन चल रहा है कि सही से वर्क अगर नहीं कर रहे हैं तो इनसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट से कौन क्वेश्चन पूछती है? अपोजिशन पार्टी। और गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या आंसर्स देने पड़ते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा फंड था, उन्होंने एलोकेट कर दिया कहीं पे, पैसे को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो कितना पैसा पूरा उनको डिटेल बतानी पड़ेगी किसको? अपोजिशन पार्टी को। तो यहाँ पे चेक बना हुआ रहता है लेजिस्लेचर में रूलिंग पार्टी के ऊपर, कौन करता है? अपोजिशन। तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन चलता है यहाँ पर, ठीक है। Yet in most democracies, legislature are losing central place in executives. अब यहाँ पे ये लोग कुछ एक टाइप से क्रिटिक्स हैं कुछ जो हमारी कंट्री में कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो इस टाइप का स्ट्रक्चर था कि लेजिस्लेचर के अलग फंक्शंस एंड पावर्स थे, एग्जीक्यूटिव के अलग थे, जुडिशरी के अलग थे, सेपरेशन ऑफ पावर था, अलग अलग पावर्स थी, चेक एंड बैलेंस रखते थे, तो कोई अपनी मोनोपोली नहीं कर सकता था। अगर ये गलत काम करेगा तो उसको लेजिस्लेचर चेक करेगा, लेजिस्लेचर अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव विल चेक, अगर दोनों गलत कर रहे हैं तो जुडिशरी विल चेक। जुडिशरी की कुछ पावर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो पहले इस टाइप का फंक्शन होता था। बट अब कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं विद द पासेज ऑफ टाइम इन बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात हो रही है, इंक्लूडिंग इंडिया, जो हमारी लेजिस्लेचर है इसका रोल हम देख रहे हैं फेड अवे होता जा रहा है, इंपॉर्टेंस मतलब कम होती जा रही है, बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव है ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड सीएमओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बहुत ज्यादा क्या होते जा रहे हैं? पावरफुल होते जा रहे हैं। जो पहले ये लॉज बनाते थे अब क्या हो रहा है? लॉज, पॉलिसीज, स्कीम यहीं पे बन रही है और यहीं से क्या कह रहे हैं उसे इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो इस टाइप से ये बोल रहे हैं कि इनका रोल खत्म होते जा रहा है। तो इस चीज को क्रिटिक्स बोल रहे हैं, इसको हमें क्या करना है? काउंटर करना है, क्योंकि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? लेजिस्लेचर। हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसे हमें काउंटर करना है, हमें आर्गुमेंट्स देने हैं कि नहीं, लेजिस्लेचर की और पार्लियामेंट की आज भी वही इंपॉर्टेंस है जो पहले थी, और बिना इनके ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा पावर्स चाहिए। किसकी वजह से? मैंने यहाँ पे रीजन दिया था, ठीक है, अगर ये अपनी ज्यादा पावर दिखाएंगे तो यहाँ से जो ये मेंबर्स है अपना सपोर्ट हटा देंगे। सपोर्ट हटा देंगे तो पीएम रहेगा ही नहीं, पीएम नहीं रहेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब भी पीएम अगर रिजाइन भी कर देगा बीच में तो ऑटोमेटिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं? इन्हें भी रिजाइन करना पड़ता है। तो अगर ये अपना पावर यहाँ से हटा देगा सपोर्ट, तो एक टाइप से हमेशा क्या रहते हैं? चेक में रहते हैं, बिकॉज़ पावर ज्यादा है और इन्हें पता है कि अगर हम इस पोजीशन में तो जस्ट बिकॉज ऑफ लोकसभा और राज्यसभा और लेजिस्लेचर में जो हमारी मेजॉरिटी है, ये मेजॉरिटी मतलब कुछ लोगों ने अगर हमारा साथ छोड़ दिया तो हमारा नंबर 272 से कम जैसे ही गया तो हमारी गवर्नमेंट क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी तो पीएम विल हैव टू रिजाइन, पीएम रिजाइन करेगा तो उसके अंडर जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे ये भी रिजाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आर्गुमेंट देकर के हमने सपोर्ट किया है किसको? लेजिस्लेचर को। आई एम रीडिंग दिस फ्रॉम योर बुक, थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। Yet in most democracies, legislature are losing central place to the executive. Central place legislator पहले legislature का हुआ करता था, वो lose होता जा रहा है. In India, to the cabinet initiates policies. जो हमारे ये cabinets इनको ही बोलते हैं, PM, president सारे. जो cabinets हैं, initiate policies, set the agenda for the governments and carries them through. मतलब खुद ही laws बना रहे हैं, खुद ही policies बना रहे हैं और इसको implement कर देते हैं, ठीक है? This had led some critics to remark the parliament has declined. तो कुछ critics हैं जो कह रहे हैं इसका means जो parliament का रोल था वो क्या होता जा रहा है? Decline होता जा रहा है with passage of time. Okay. But even very strong cabinet must retain majority. हम ये बोल रहे हैं चाहे कितनी भी powerful cabinet में executive की बात कर रहे हैं, कितने भी powerful president, prime minister और council of ministers हो, but कितने भी power हो जाए, कितनी power उनके हाथ में आ जाए, but उनको किसके ऊपर dependent रहना है? उनको majority बना के रखनी है कहाँ? लेजिस्लेचर में, लोकसभा में, राज्यसभा में। यहाँ से मेजॉरिटी आएगी तो ऑटोमेटिकली वो भी वहां से डिसॉल्व हो जाएगी गवर्नमेंट। तभी लिखा देखिए सेंटेंस को अच्छे से देख लीजिए। दिस हैज लेड सम क्रिटिक्स टू रिमार्क दैट पार्लियामेंट हैज डिक्लाइंड बट इवन वेरी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट्स मस्ट रिटेन मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। मेजॉरिटी चाहिए लेजिस्लेचर में, मेजॉरिटी नहीं होगी तो ये एग्जीक्यूटिव रहेंगे ही नहीं, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग लीडर हैज टू फेस पार्लियामेंट एंड आंसर द सैटिस्फैक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। अब जो भी लीडर होंगे चाहे पीएम हो, ठीक है, चाहे काउंसिल ऑफ जितने मिनिस्टर्स हैं, मान लीजिए हेल्थ मिनिस्टर है, उसको जब यहाँ पे डिबेट होगी, यहाँ पे सेशन होगा लोकसभा में,
हेल्थ से रिलेटेड उसने क्या किया है, कितनी फंडिंग कहाँ पे की है, उसको सारे आंसर कहाँ पर देने, लोकसभा में और राज्यसभा में। अपोजिशन पार्टीज उससे क्वेश्चन करेंगी, तो ये हमेशा टोस्ट पे होते हैं, रेडी होते हैं, ये अपनी मोनोपोली के अकॉर्डिंग नहीं रह सकते कि ओके आई एम द सीएम, सॉरी मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, ठीक है, मैं वुमेन्स एम्पावरमेंट का अगर मिनिस्टर हूँ तो मेरे को कोई नहीं बोल सकता है। मुझे कहाँ पे आंसर करना है, लोकसभा राज्यसभा में हमेशा आंसर करना है अपोजिशंस को, ठीक है, तो ये हमेशा तैयार रहते हैं। तो एक टाइप से दिखा रहे हैं डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट, इन्हें पार्लियामेंट आना ही पड़ता है क्योंकि वहीं पर मीटिंग्स होती हैं। This has shown critics to remark that Parliament has declined, but even very strong cabinets must retain majority in the legislature. A strong leader, कितना भी strong leader हो, he has to face the Parliament. Parliament को face करना ही पड़ता है and answer the satisfaction of the Parliament. और Parliament में आंसर satisfy करना पड़ता है, सबको आंसर प्रॉपर देना पड़ता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोला निकल गए। Herein lies the democratic potential of the Parliament. इसीलिए बोलते हैं डेमोक्रेटिक पोटेंशियल है, पावर है पार्लियामेंट की जो एग्जीक्यूटिव्स को अपने कंट्रोल में रख सकता है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम ऑफ डिबेट। पूरी कंट्री में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे इतना ओपनली डिबेट होती हो हमारी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जो पार्लियामेंट आप देख रहे हैं न्यूज में ओपन दिखाते हैं, ऐसी मीटिंग होती है जो हमें दिखाते नहीं है। आप जो भी हमारे पार्लियामेंट में चल रहा है हर दिन शाम को देखो आप लोकसभा राज्यसभा में क्या क्या हो रहा है, क्या डिबेट्स हो रही है, ठीक है, क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, किन स्कीम्स के ऊपर, किन मैटर्स, किन मुद्दों के ऊपर बातें हो रही है, सब कुछ हम देख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरी कंट्री में जो ओपन है, इसमें छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, ओपनली डिबेट होती है, ठीक है, पार्टी के बीच में। On account of its composition, it is the most representative of all the organs. अगर हम सारे organs की बात करें, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की, ये सबसे ज्यादा इसको हम क्या बोल रहे हैं, देखिए on account of its composition it is the most representatives of all the organs of the government. It is above all vested with the powers to choose and dismiss the government. तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली कहां पे इलेक्ट होते हैं, लेजिस्लेचर में होते हैं। लेजिस्लेचर के बाद क्या होता है, यहीं से मेंबर्स निकल के यहां पे हम इन्हें इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग से। और जो जुडिशरी में जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, हमारे कोर्ट्स हैं, उनके भी जो हमारे क्या होते हैं जजेस होते हैं, उनको कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ अदर जजेस। वो अलग एक स्टोरी है, बट डायरेक्टली यहां पे इलेक्ट हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा लेजिस्लेचर ही है, ठीक है, ये पूरा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है हमारा। तो इसको हम यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, जो क्रिटिक्स कह रहे थे कि ये अपनी सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल स्ट्रेंथ लूज करता जा रहा है एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव, बिकॉज़ एग्जीक्यूटिव खुद ही प्लान्स बना रहे हैं, खुद ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चाहे कितने प्लान्स बना रहे हैं, कितने डिबेट कर रहे हैं, कितने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली दे आर ऑलवेज अंडर प्रेशर, दे आर ऑलवेज इन चेक एंड बैलेंस टू लेजिस्लेचर, क्योंकि इनके पास क्या है, यहाँ पे मेजॉरिटी तो लोकसभा राज्यसभा में बनानी है, जिसके पास मेजॉरिटी होगी लोकसभा राज्यसभा में वही तो पीएम बनेगा, वही तो सीओएम बनेंगे, ठीक है। तो इट इज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये यहाँ पर। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं वैसे किसी को।